Hello, good morning, students. Now, let us move in the last part of your Nelson Mandela story, which was left in the last session. Understand it very properly. What is the writer trying to say in the last point? I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Oppressor, one who tries to oppress someone. Oppress, try to show his or her cruelty or try to suppress the ideas of someone. So what is he trying to say? I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Both the persons, one who is oppressing and one who is oppressed, both should be given the freedom. Why? Especially the oppressor, when he is thinking to oppress someone, जब कोई अन्याय करने वाला किसी पर अन्याय करने के बारे में सोचते रहता है तो उसका दिमाग पूरी तरह से भरा रहता है. Means that oppressor must be given the freedom so that the oppressed person will, who is already okay, should be given the freedom, must be like the oppressor. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatredness. Any person in this world who is trying to snatch the freedom of another person is like a prisoner. वो prisoner की तरह होता है. जो इंसान दूसरों की freedom को छीनता है तो वो prisoner है. किस चीज का? hatredness का, नफरत का prisoner है वो. He is locked behind the bars of prejudice. और ऐसा व्यक्ति हमेशा कौन से पिंजरे के बार्स के पीछे अटका रहता है? प्रिजुडाइज के. प्रिजुडाइज क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन. यू आर हेटिंग समवन, you are having the hatredness to someone, but there is no strong type of a or a good reason for that one. बस लोग करते इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, नफरत कर रहा हूँ. So such kind of a person is created behind the bars of prejudice and narrow mindedness. और दूसरा, सोच बहुत कमजोर होती है, छोटी सोच वाला. He is a person who is having the narrow mindedness. In the last three lines, I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. He says, I am actually not enjoying my freedom if I am taking away someone else's freedom. अगर मैं किसी और की फ्रीडम को छीनता हूं तो मैं खुद आजाद नहीं हूं, क्योंकि मैं सोच में डूबा रहता हूं कि मैं दूसरों की फ्रीडम कैसे छीनूंगा. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री when my freedom is taken from me. बिल्कुल मैं भी वैसे ही रहता हूं जैसे जैसे मुझसे अगर मेरी फ्रीडम छीनी जाए तो मैं जैसा बेचैन होता हूँ, वैसे मैं जब दूसरों की फ्रीडम छीनूंगा तो भी मैं सही मायने में फ्री नहीं गिना जाऊंगा. I cannot be said as a liberal person. I will be also like the prejudice and the narrow mindedness type of a character. So understand that line very properly. So he says, I am not free when I am trying to snatch away the freedom of or take away the freedom of others. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Both the persons, one who is oppressed, जिसके ऊपर अन्याय होता है, जिसको oppress किया जाता है, and second one who is oppressing, oppressor जो होता है, जो दूसरों पर अन्याय करता है. Both are same, both are robbed of their humanity. दोनों के पास से उनकी इंसानियत एक्चुअली में देखा जाए तो छीनी जाती है. Okay, now we will try to go in the next session, or especially in the next lesson, the thief's story. This is the new lesson for today, and let us start with the lesson number 2 from your supplementary reading. So please pay attention properly here. Now from the title itself we can understand it is a story related to the thief. There is a young boy who is making good friends or a good friendship with Anil. एक young boy है जो अनिल नाम के व्यक्ति से अच्छी दोस्ती करता है, और अनिल से दोस्ती करने के पहले उसका विश्वास वो जीता. ही इज ट्राइंग टू हैव द ट्रस्ट, ओके, ऑन द यंगर बॉय. सो अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली. अनिल पूरा विश्वास रखता है उस यंग बॉय पे एंड एम्प्लॉयज हिम, एंड ही इज ट्राइंग टू एम्प्लॉय द यंग बॉय एट हिज होम. एम्प्लॉय करना, अपने घर पे काम पर रखना. Okay, one who is given a kind or allotted some kind of a work at home, such a kind of a character is called as a employee. Does the boy betray his trust? Now the question is, क्या वो लड़का, उसने जो ट्रस्ट रखा है अनिल ने उसके ऊपर, क्या उसके ट्रस्ट का पूरी तरह से बिट्रे करता है, उसके साथ चीट करता है?
let us find out in the story. Now before you read the story, you have to understand who is I in the story. The first question, who does I refer to in this story? Second is, what is he a fairly successful hand at? ही मतलब यहाँ पर यंग बॉय, ओके, और वो फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब ही इज क्वाइट गुड, फेयरली सक्सेसफुल इन हिज वर्क, स्पेशली इन हिज प्रोफेशन, क्योंकि वो थीफ था और उसका कितने हद तक सक्सेस है उसका उस काम में. व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? जब वो अनिल के यहाँ पर काम करता है यंग बॉय, तो उसको बदले में, ओके, उसके बदले में जब वो लड़का काम करता है अनिल के यहाँ पर, तो अनिल, ओके, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल? अनिल के पास से उसको बदले में क्या मिलता है उसके इतना मेहनत करने के बावजूद ना? हु इज योर आई से? आई सेड इट इज यंग बॉय. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. जब मैं पहली बार अनिल को मिला तो मैं उस वक्त काफी यंग था. आई वॉज क्वाइट यंग फेलो. आई वॉज जस्ट अबाउट 15 years ओल्ड कैरेक्टर. मैं सिर्फ उस वक्त 15 years का ही था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मैं काफी एक्सपीरियंस्ड कैरेक्टर भी था. आई वॉज वेल एक्सपीरियंस्ड एज वेल एज आई वॉज फेयरली सक्सेसफुल विथ माई हैंड. मेरी जो रॉबरी का जो प्रोफेशन था उसमें मैंने काफी हद तक अच्छे से इस ग्रिप बना के रखी हुई है चोरी करने के ऊपर. Now, when he is going to meet Anil for the first time, where did he see him? Anil was watching a wrestling match when I approached him. अनिल को जब मैं मिलने गया, यंग बॉय कहता है, तो उस वक्त वो रेसलिंग की मैच देख रहा था. He was about 25. There is a difference between both the persons of 10 years. 10 साल का फर्क है दोनों के बीच में. अनिल 25 साल का है और ये लड़का 15 साल का है. Now, how is Anil? Anil is a tall, lean fellow, a thin fellow you can say. Anil एक दुबला पतला सा लंबा सा व्यक्ति है. And he looked easy going. Everything was going on in a very easy way. He is enjoying his life in his own manner. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. He is very kind and simple enough for my purpose. Young boy कहता है, whatever I had planned, according to my planning, this man was very kind and simple enough to accomplish my task, to accomplish my purpose. I hadn't had much luck of late, and whenever I am reaching someone, I was not that much late, and I was quite lucky to do all my work. मैं काफी लकी साबित होता था और कभी लेट नहीं होता था, खास करके जब मैं किसी काम को अंजाम देने जाता था. And thought I might be able to get into the young man's confidence. और मैंने क्या सोचा कि इस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को मैं आराम से जीत लूंगा. So I started speaking to Anil. अनिल से मैं बात करता हूँ और इस कन्वर्सेशन को ध्यान से देखना भी. दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ वो क्या क्या जवाब देता है और सामने से वो क्या बोलता है. Now, you look a bit of a wrestler yourself. You look a bit of a wrestler yourself, I said. उस यंग बॉय ने अनिल को कहा, आप खुद जो ये रेसलिंग की मैच देख रहे हैं, आप खुद एक रेसलर की तरह लगते हो यार. थोड़ा बहुत रेसलर का क्वालिटी आपके अंदर नजर आ रहा है. I said, a little flattery helps in making friends. थोड़ी सी किसी को बड़ा चढ़ा कर बात कर दो तो वो फ्रेंडशिप करने में अच्छा साबित होता है, अकॉर्डिंग टू द यंग बॉयज एक्सपीरियंस. एंड देन द रिप्लाई कम्स फ्रॉम अनिल. ही रिप्लाइड, सो डू यू? तुम भी तो वैसे ही दिखते हो, बिल्कुल रेसलर की तरह. मतलब अनिल चालाक था थोड़ा सा. अनिल को भोला भाला था, लेकिन कुछ तो चीजें उसको किससे बात कैसे करनी है वो पता था. सो डू यू? तुम भी तो वैसे दिखते हो रेसलर की तरह. और ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए. which put me off for a moment. मैं तो पल भर के लिए थक्का बक्का रह गया. I was completely shocked for a moment because at that time I was rather thin. क्योंकि उस वक्त यंगर बॉय कहता है कि सही मायने में देखा जाए तो मैं उस वक्त काफी दुबला पतला था और उसको कौन से एंगल से मैं रेसलर लग रहा था नहीं पता ना. सामने से वापस यंग बॉय बोलता है, वेल आई सेड मॉडेस्टली, सीरियसली, आई डू रेसल अ बिट. मैं कभी कभी थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लेता हूं सर. और यह सुनकर अनिल ने मुझे सवाल किया, व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? और इसने यंग बॉय ने अपना झूठा नाम बताया, हरी सिंह. एक्चुअली दिस इज नॉट हिज रियल नेम. उस बच्चे का नाम हरी सिंह है ही नहीं. आई लाइड ऐसा लिखा हुआ है. वो क्या करता था, हर
बार जिस जगह पे काम के लिए जाता है उस जगह पे अपना नाम बदल के यस रहता है। इससे क्या फायदा होगा? व्हाट इज ही सेइंग? आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने में अपना नाम बदलता हूँ, एंड दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, और इसकी वजह से मैं पुलिस को आराम से चकमा देकर उनके आगे सामने से निकल जाता हूँ। एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स आल्सो, और मेरे जो पहले एम्प्लॉयर्स थे जिन्होंने मुझे एम्प्लॉय किया था, जिन्होंने मुझे काम पे रखा था, उनको भी मैं चकमा देकर भाग सकता था आराम से, मुझे कोई कुछ नहीं कर पाता था। नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, मेरे इस इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है आगे? आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. अनिल थोड़ा सा ये बताता है कि देखो ये जो रेसलर्स है ना, उनकी बॉडी देखो, अच्छे से मॉलिश करके कैसे हट्टे कट्टे दिखते हैं, और जब वो गुर्राते हैं, ग्रंटिंग करते हैं, आवाज देखो कैसे निकालते हैं, भयंकर, दैट इज अ ग्रंटिंग साउंड। फिर वो उठा उठा कर किसी को पटकते और जोर जोर से थ्रो करके एक दूसरे के साथ रेसलिंग करते हैं। देख तो सही कैसा नजारा है। व्हाट डज ही मीन आउट ऑफ दिस? ही इज ट्राइंग टू मेक द यंग बॉय अलर्ट कि मेरे साथ अगर कुछ खेल खेल रहा है तो तुझे भी ऐसे ही इनके हाथों से मैं पिटवा दूंगा। आई डिडंट हैव मच टू से, ये सुनकर मैं कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचा। आई वॉज नॉट हैविंग द वर्ड्स टू से समथिंग टू अनिल। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल वहां से जाने लग गया। आई फॉलोड कैजुअली, कैजुअली मीन्स इन अ कॉमन मैनर, धीरे धीरे मैं जैसे जैसे अनिल आगे जा रहा था उसका पीछा करते करते मैं उसके पीछे जा रहा था, छुप छुप कर, कैजुअली। और अनिल ने जैसे ही मुझे देखा तो सामने से कहा, हेलो अगेन, वापस तुम मेरे पीछे आ गए। और तब मैंने मुस्कुराहट देते हुए, अपीलिंग स्माइल इज सिंपैथेटिक स्माइल, जैसे भाई साहब मुझे काम पे रख लो ना यार प्लीज। और तब उस यंग बॉय ने अनिल से कहा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू सर, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कांट पे यू। सामने से ध्यान देना, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, फुल स्टॉप दिया हुआ है। उसके बाद अनिल जवाब देता है, ठीक है मैं काम पे तो रख लूंगा तुझे, लेकिन मैं तुझे इसके बदले में कोई भी सैलरी नहीं दे सकता, मैं इतना अमीर नहीं हूं कि मैं तुझे सैलरी देता बैठू। ये सुनकर अब क्या हुआ? आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने कुछ मिनट के लिए उस चीज पर गौर किया। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, शायद मैंने गलत आदमी को पकड़ लिया या गलत आदमी को फंसाने की कोशिश करा था, ऐसा मैं पल भर सोच रहा था, यंग बॉय कहता है। और फिर मैंने पूछा, उस यंग बॉय ने पूछा, सर ठीक है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव मी द सैलरी, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना तो खिला सकते हैं कि नहीं? तब सामने से अनिल ने पूछा, इज आस्किंग अ क्वेश्चन, कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो? और ये वापस झूठ बोलता है यंग बॉय। आई लाइड अगेन, आई कैन कुक, मैं खाना बना सकता हूँ सर, अच्छे से खाना बना सकता हूँ। और तब देखो क्या हुआ, ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। अब वो जमुना स्वीट शॉप जो है, स्वीट शॉप जो है उसके ऊपर उसका कमरा था अनिल का, वहां पर उस बच्चे को लेकर जाता है। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी नॉट इन द बालकनी, और ओवर द बालकनी नहीं, गलत हो जाएगा। बालकनी एक हैंगिंग हिस्सा होता है, मतलब वो एक बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है, इसलिए उसको ऑन द बालकनी कहते हैं ना। बालकनी में तुम जाकर सो सकते हो, तुम्हारा इंतजाम सोने का यहाँ पर तुम कर सकते हो। नाउ व्हाट हैपेंड, उस रात इस यंग बॉय ने जिंदगी में पहली बार खाना बनाया, क्योंकि उसने झूठ बोला था कि मैं खाना पका सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया ना, वो बड़ा भयंकर हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत टेरिबल बनाया था। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, गलियों में जो कुत्ते भटकते हैं उनको खिला दिया अनिल ने वो खाना। इसका मतलब ये हुआ खाना बहुत गंदा बनाया था, इतना खराब, पहली बार बनाया था ना, फर्स्ट टाइम। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे, तू एक काम कर, यहाँ से निकल जा, तू मेरे यहाँ पर काम करने लायक नहीं है, ऐसा अनिल ने उसे डांट दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं हाथ जोड़ के या फिर उससे गिड़गिड़ा के स्माइल देता हुआ, ओके, वो भी मोस्ट अपीलिंग मैनर में मैं स्माइल देता हुआ, भाई साहब गलती हो गई मुझसे, झूठ बोला गया, अब मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा, ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू प्रिपेयर द डिलीशियस फूड। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग,
और ये मेरी हालत देखकर अनिल से रहा नहीं गया, हंस पड़ा वो। और हंसते ही मुझे यकीन हो गया कि चलो मेरी जॉब तो नहीं गई मुझसे। अब क्या होता है देखो, फिर वो सामने से आता है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, मेरे सिर पर ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है। एंड सेड नेवर माइंड, कोई बात नहीं है, ठीक है, आई जस्ट एडजस्ट इट। ही वुड टीच मी टू कुक, और उसने, अनिल ने ये भी दिलासा दिया कि ठीक है मैं तुझे खाना बनाना सिखा दूंगा, फिर धीरे धीरे तू बनाना सीख जाएगा, तब मुझे बना के खिला देना। He also taught me to write my name and said, सबसे बड़ी बात, the most important factor of the lesson is the young boy for the first time at someone's house was taught, पढ़ाया गया पहली बार लिखना कैसे होता है, ये पढ़ाने वाला पहला इंसान अनिल था उसकी लाइफ में। And said he would soon teach me to write whole sentences, पहले शब्द सीखेगा, फिर धीरे धीरे उसने प्रॉमिस किया कि पूरे के पूरे सेंटेंस में तुम्हें लिखना सिखा दूंगा। एंड टू ऐड नंबर्स आल्सो, और उसको कैलकुलेशंस करना भी सिखा देगा। एंड दिस वाज अ गुड पॉइंट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय अनिल, स्पेशली टू द यंग बॉय to whom he has no relation at all. I was grateful, I was really thankful for this matter. I knew that once I could write like an educated man, और मुझे उसी वक्त immediately, at once means at that particular matter or at that particular point, I once I learn how to write, I can write like an educated man. So what will happen because of this? There would be no limit to what I could achieve. और फिर एक बार मैं अगर एजुकेटेड हो गया ना अच्छा, तो मेरी कोई लिमिट नहीं होगी कि मैं किस मुकाम तक पहुंच सकता हूँ, मैं क्या से क्या बन सकता हूँ। नाउ इट वाज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत मेरे लिए खुशी भरा था। मैं खुशी खुशी से उसके पास से यस लिखना और सेंटेंसेस बनाना सीख रहा था, और साथ में खाना भी और बाकी काम भी छोटे मोटे करना सीख रहा था। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. पहले मैं सवेरे अनिल के लिए चाय बना के देता था, और उसके बाद में घर के लिए लगने वाली ग्रोसरी वगैरह वगैरह जो चीजें हैं, I would move out and start buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. और उसमें से बचा हुआ एक आध रुपया है ना, उसको मैं अपनी जेब में रख लेता था। I used to keep that profit of ₹1 per day, means 30 days 30 rupees. अब यंग बॉय क्या कहता है, शायद अनिल को यह बात पता चल गई होगी। आई थिंक, ऐसा लिखता है वो, आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन देखकर अनदेखा किया जा रहा है, ही इज नॉट टेकिंग और कंसिडरिंग द मैटर वेरी सीरियसली। अनिल शायद उन बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, या फिर उस बात को टालने की कोशिश करते हैं। दिस इज द पिक्चर वेयर यू कैन सी हाउ Anil is trying to teach the child how to write whole sentences. And now, coming to the next point of the story, on next page, Anil made money by fits and starts. ये बहुत important है, fits and starts. Let us have some of the meanings are given beside the lesson also. You can, oh, okay, it is not mentioned here. At the end, grocery, it is mentioned. Fits and starts is a kind of a business where you are lending money, किसी को पैसे देकर ब्याज कमाना, या किसी चीज में पैसे लगाकर उसमें से ब्याज कमाना, या इधर की उधर करके यस कोई ना कोई पैसा कमाने की यस कोशिश करना। एंड दैट इज कॉल्ड एज फिट्स एंड स्टार्ट्स। इट्स अ काइंड ऑफ अ बिजनेस ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग द मनी। कम ब्याज में पैसा लो किसी से और ज्यादा ब्याज से बांट दो, लेकिन इसमें रिस्क बड़ा था। ही वुड बोरो 1 वीक, जो लिखा हुआ है आगे, एक हफ्ते वो किसी से यस उधार पैसे लेता है, और नेक्स्ट वीक में किसी को यस ज्यादा ब्याज से पैसे, ज्यादा इंटरेस्ट से पैसे यस दे देता है स्पेसिफिक पीरियड के लिए। फिर उसमें वापस चेक आएगा तो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पैसा आएगा। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और उसको हमेशा परेशानी रहती थी अनिल को कि अगला चेक उसका कब निकलेगा और कितनी अमाउंट होगी, और निकलेगा भी कि नहीं, कि सामने वाला हाथ ऊपर ना कर दे कि भाई कौन सा पैसा दिया था आपने, ऐसा कुछ करना बेटे। सो इट वाज अ काइंड ऑफ अ रिस्की बिजनेस। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे उसके पास वो चेक आता है ना, तो क्या होता है, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके अनिल की, प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, उसकी लाइफ जीने का तरीका। जैसे जिस दिन उसको चेक मिलता है क्या करता है अनिल, अनिल सीधा चेक लेकर पैसे
निकलवा के आराम से बाहर जाता है उस दिन और एंजॉय करता है, शायद अपने दोस्तों के साथ, अकेले, जो भी है। और इससे क्या पता चलता है यंग बॉय को? इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। ऐसे भी लगता है वो कभी कभी मैगजीन्स के लिए भी लिख दिया करता है। उसकी भाषा अच्छी थी अनिल की, उसकी लैंग्वेज और उसका टैलेंट अच्छा था, और वो मैगजीन्स के लिए भी कुछ लिखकर पैसे कमाता था। इट्स अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज टाइप ऑफ अ मैनर टू लिव सच काइंड ऑफ अ लाइफ। ऐसी जिंदगी जीना, एक तरफ पैसे का जुगाड़ करना और दूसरी तरफ मैगजीन का ऑथर की तरह या एडिटर की तरह काम करना, और इस तरह से न जाने छोटे मोटे काम करके वो पैसे कमाता था। एंड देयरफॉर ऑथर सेज इट्स अ क्वीर, it's a very strange type of a method to live the life. Now, one evening he came home with a small bundle of notes. एक शाम को अनिल एक छोटे से बंडल के साथ, पैसों का बंडल लेकर, उसको मिला होगा, उसका पैसा चेक मिला होगा, और चेक उसने बैंक में सबमिट करके, यानी कि खास करके पैसे निकलवाए होंगे। ओके। और जैसे उसने पैसे लेकर घर पे आने के बाद उन पैसों को शायद अपने बेड के नीचे रखा, तो एक्चुअली पैसे उसको किस चीज के मिले थे? ही सेज दैट when he comes with a small bundle of the notes saying he had just sold a book to a publisher. वो क्या कहता है अनिल? कि उसने एक किताब बेची है पब्लिशर को, उसकी वजह से उसको इतना बड़ा यस पैसा मिला है। At night I saw him tuck the money under the mattress. रात को मेरी नजर पड़ गई, ये तो चोर था ही था, रात को उसकी नजर पड़ गई कि वो गादी के यानी कि गद्दे के नीचे, यानी कि कॉट के और गद्दी के नीचे वो पैसे रख रहा था। अब चोरे तो ख्याल तो आएंगे चोरी करने के। एंड नाउ व्हाट ही इज थिंकिंग, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं अनिल के लिए लगभग एक महीने से काम कर रहा हूँ, महीने से ऊपर काम हो चुका था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग करने के बाद मैं चीटिंग तो थोड़ी बहुत करता ही था, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। चीटिंग के अलावा मैंने अभी तक मेरा जो प्रोफेशन है चोरी करने का, रॉबरी का, थीफ का, अभी तक मैंने उसको अंजाम नहीं दिया था, और सोच रहा था कि आज वो वक्त आ चुका है, अब मैं इसको लूट के, इन पैसों को चुरा के यहाँ से भाग जाऊं तो अच्छा रहेगा। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। एक्चुअली मेरे पास ये हर एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं कभी भी घर में चोरी करके भाग सकता था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल हैज kept the faith in the young boy and therefore he has provided the key also. मेन डोर की चाबी भी देके रखी है। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। जब मेरी इच्छा हुई, as per my wish, as per my desire, I could come at any time and go out of the house at any time. Means I was having golden opportunity to rob the house and run away permanently. He was the most trusting person I had ever met. बहुत important sentence है। अनिल was the most trusting person. अनिल सबसे पहला इतना विश्वासु व्यक्ति था कि जिसने मुझ पर पूरा विश्वास रख दिया था, और आज तक मैंने इतना विश्वास रखने वाला व्यक्ति मेरे पूरी जिंदगी में नहीं देखा था, ऐसा यंग बॉय कहता है। In the last point of the story today's session, and that is why it was so difficult to rob him. और यही वो कारण था जिसकी वजह से उसको चोरी करके चकमा देके भाग जाना मेरे लिए बहुत टफ हो रहा था, क्योंकि उसका विश्वास उतना था। It's easy to rob a greedy man. यंग बॉय का एक्सपीरियंस देखो, कोई ग्रीडी इंसान है ना, लालची इंसान है, तो लालच में पैसा कमाए ना, उसको चोरी करके भाग जाना बहुत आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो आराम से अफोर्ड कर सकता है। आज नहीं तो कल वो लालच में कहां ना कहां से पैसा कमा सकता है। तो ये ऐसे व्यक्ति की चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन कोई केयरलेस कैरेक्टर है जो केयर नहीं करता है कि उसके पैसे किधर पड़े हुए हैं, घर में क्या है, सामान कितना है, वो ध्यान नहीं देता है, ऐसा व्यक्ति ज्यादा मन पे नहीं लेता है। ऐसे केयरलेस मैन को जिसका आप पर पूरा विश्वास होता है, ऐसे व्यक्ति को रॉब करना, उसको चकमा देकर जाना, इट्स वेरी टफ। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड। कभी कभी उस केयरलेस इंसान को ये भी नहीं पता चलता है कि उसके साथ कोई इतनी चोरी छुपे चोरी कर रहा है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और तब जाकर आप जिस जगह पर काम करते हो और चोरी करने के बारे में सोचते हो ऐसे केयरलेस इंसान के घर में, तो वो आपके काम का पूरा खुशी का माहौल आपसे छीन लिया जाता है। एंड लास्ट लाइन, वेल बट ही सेज इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब सही वक्त आ गया था कि मुझे कुछ करना था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से
क्या कहा कि अब वक्त आ चुका है, अब मुझे यस आई नीड टू गिव द पर्टिकुलर यस प्लान इनटू और पुट पर्टिकुलर प्लान इनटू एक्शन नाउ. आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. मैं बहुत दिन से इस रॉबरी की प्रैक्टिस से दूर था. अब मुझे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए. एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं आज पैसे नहीं चुराता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. और आज ये जो पैसा कमा के आया ना, जाकर अपने दोस्तों में उड़ा देगा. yes, he will spare them out, he will try to use them out, and after all he doesn't even pay me. और ऊपर से उसके मन में एक दुविधा पैदा हुई. what he says, इतना मैं घर पे इसके चाय बना कर देता हूँ, इसका सब कुछ लेकर आता हूँ, इसके लिए मैं सब कुछ बनाता हूँ, और बदले में मुझे ऐसे भी वो पगार कहाँ देता है. तो ऐसा ही समझकर मैं इसके घर से चोरी कर लेता हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है. आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट सेशन ऑफ द लेसन द thief स्टोरी, and we'll continue the same lesson in the next story. See you soon tomorrow. Bye all of you.